ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بلند عمارت کی 5ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس اقدام میں خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا، مگر اس کی زندگی سے بیزار ہو جانے کی بڑی عجیب وجہ تھی۔ خوف اور تشویش کی وجہ سے دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا، اس کی آمدنی وافر تھی، وہ سچ مچ روپے میں کھیلا کرتا تھا، لوگ اس کی قسمت پر اشک کرتے تھے۔ مگر اچانک اس کی یہ ترقی اور کاروبار بیٹھ گیا، اسے نفع کی بجائے نقصان ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مالی حالت بگڑ گئی۔ کاروبار میں واجبات ہی نہیں، قرضے بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی رقمیں اس کے ذمے نکلتی تھی شکاری کتوں کی طرح اس کے پیچھے لگ گئے، مگر جیسا کہ دنیا کا دستور ہے، وہ لوگ جو اس کے مقروض تھے غائب ہو گئے۔ اسے تمام مصیبتوں میں جو مصیبت سب سے زیادہ تکلیف دہ معلوم ہوئی وہ بینکوں سے لیے ہوئے قرضوں کی ادائیگی تھی، کیونکہ انہیں ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس سے بھی دلدوز تکلیف ایک اور تھی۔ وہ اس آفت کی چوٹ اپنے شریک حیات کے دل پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے دنیا کی محبوب ترین ہستی تھی، لیکن یہ چوٹ لگ کر ذہنی طور پر بے سکون ہو سکتی تھی اگر اسے اپنے شوہر کے حالات کا پتہ چل جاتا۔ اس کی بیوی اس کے کاروباری کامیابی نیز اس کی سوجھ بوجھ پر نازاں رہتی تھی۔ اسے یہ خلچ کھائے جاتی تھی کہ اس کی نازک نسوانی دل کو ناقابل برداشت صدمہ پہنچے گا اور شاید وہ اسے برداشت نہ کر سکے گی۔ اس اندیشے اور تشویش نے اس کا ذہنی توازن درم برہم کر دیا اور وہ اپنی ہی دکان کی عمارت کی 5ویں منزل سے نیچے کود پڑا تاکہ اس طرح جان دے کر اپنا خاتمہ کر لے۔ مگر ایک عجیب اتفاق سے وہ پھر زندہ رہا۔ اس وقت جہاں اس نے 5ویں منزل سے چھلانگ لگائی، عمارت کی پہلی منزل میں ایک شامیانہ نصب تھا۔ وہ اس شامیانے پر گرا، شامیانہ پھٹ تو گیا، مگر اس نے شخص کو زمین پر گرنے سے روک لیا۔ وہ نیچے کی طرف جانے کی بجائے اس منزل کی کھڑکی پر جا گرا اور وہاں سے لڑ کر پہلی منزل کے ایک کمرے میں کھڑکی کے قریب بچھائے گئے ایک صوفے پر جا پڑا اور یوں اس کی جان بچ گئی۔ قانون ثقل اجسام نیز عقل و فہم کے استدلال کی روح سے اسے ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ کو اس بات کا یقین نہ آئے کہ اسے صرف اتنا نقصان پہنچا کہ اس کے ایک انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا۔ اور یہ عجیب اتفاق بھی قابل ملاحظہ ہے کہ وہ جس شامیانے پر گرا اس کے تلے کوئی بھی چیز نہیں رکھی ہوئی تھی، جبکہ وہ شامیانہ خود اسی کی ملکیت تھا۔ اس شخص کی جان بچ گئی، مگر وہ بے ہوش ہو گیا تھا، جو کہ اس وقت ایک ضروری امر تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ زندہ ہے اور اسے کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا۔ اس حیرانگی نے اسے اتنا زیادہ مسرور کیا کہ وہ اپنی ساری پریشانی تشویش بھول گیا۔ اسے اب زندگی میں گہری دلچسپی معلوم ہونے لگی، جس سے وہ صرف چند منٹ پہلے اتنا بیزار تھا۔ وہ مبارکباد دینے والوں کے ہجوم سے پیچھا چھڑا کر سیدھا اپنے گھر پہنچا اور اس سارے واقعے کا جو اسے پیش آیا تھا اپنی بیوی کو حال سنایا۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مین مقصد جو ہے اس کے لیے آپ کو تحریر مزید آگے پڑھنی ہوگی۔ ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ دکھ درد بانٹنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور دکھ درد بانٹنے سے کس قدر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی بیوی اس کی آپ بیتی سن کر، اس سانے کی دکھ بھری کہانی سن کر پہلے تو سٹپٹا گئی، پھر یہ سوچ کر بہت خوش ہوئی کہ بہرحال اس کے شوہر کی جان تو بچ گئی۔ اس کے لیے اسے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی، مگر اسی کے ساتھ وہ اپنے شوہر سے یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ اس نے اس پریشانی کا حال اپنی بیوی سے کیوں نہ بیان کیا، اور تاکہ اس طرح اس کا دکھ ہٹ جاتا۔ اس کی بیوی یہ بالکل درست تھی، اس نے شوہر کے علم میں لائے بغیر لاکھوں روپے کے زیورات اپنی تجوری میں محفوظ کر رکھے تھے۔ یہ زیورات ان رقموں سے بنوائے گئے تھے جو اس کا شوہر اپنی بیوی کو وقتاً فوقتاً نظر کیا کرتا تھا۔ اگر اس کے شوہر نے اپنا دکھ بانٹنے کا خیال اسے بتا دیا ہوتا تو وہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، تو اس زیورات کو ان کے حوالے کر دیتی اور اس کا شوہر انہیں رہن سہن کر بیچ کر اپنے قرضے چکا دیتا۔ اس شخص نے اپنی شریک زندگی کے ساتھ اپنا دکھ بانٹنے سے گریز کر کے
अपनी मौत का सामान कर लिया था। ये एक इत्तेफाक था कि अमाद की पहली मंजिल पर शामियाना नस्ब होने की वजह से उसकी जान बच गई थी। उसकी बीवी ने फ़ौरन उसे कर्ज़ों के जंजाल से निकालने के लिए कारगर तदबीरें की। शरीके ज़िंदगी की फरासत और हुस्न तदबीर से उस शख्स को कर्ज़ों से निजात मिल गई। इसके बाद वो शख्स ने ज़्यादा फहम व फरासत से काम लिया। उसका कारोबार दोबारा चमक उठा। उसने सोच सोच कर इक़दामात किए और इस तरह की तिजारत के पेश नज़र ज़्यादा मजबूत बुनियादों पर कायम की और उसकी ज़िंदगी बिगड़ते बिगड़ते दोबारा बन गई। उस शख्स ने इस सानहे से जो कुछ सीखा, मगर उसे इस सबक को याद रखा कि किसी इंसान के साथ जो अपना सही रफ़ीक हो, अपनी आप बीती का हाल बयान करके दुख दर्द बांट लेने चाहिए। ख़ास करके मुसीबत का ज़िक्र अपनी शरीके ज़िंदगी से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर रफ़ीक हयात मिलना मुश्किल है। ये अहम बात जानने की वजह से उस शख्स की जान जाती रहती तो उसकी शरीक ज़िंदगी उसके हर दुख की शरीक भी है और उससे दिली हमदर्दी भी रखती है। चुनाचा उसे परेशानियों से बचाने, उन पर काबू पाने और उन्हें दूर करने की ऐसी तदबीरें उसे सूझ सकती हैं जो मुब्तलाए मुसीबत होने की वजह से खुद उसके दिमाग में नहीं आ सकती। ये वाक़या फ़र्ज़ी और घड़ा घड़ाया नहीं है, ये एक हकीकी और 100% सच्चा वाक़या है। तो इससे साबित क्या होता है कि एक शौहर अपनी शरीक ज़िंदगी को अपने दुख दर्द का शरीक ना बनाए तो अपना इतना ज़बरदस्त नुकसान कर सकता है कि जान तक गंवा बैठता है। इस शख्स की तरह बाज़ और लोग भी अपनी बीवियों को अपने हालात और मुश्किलात बताने में शर्म महसूस करते हैं, मगर इल्म नफ्सियात के ज़ाब्तों की रूह से ये अंदाज़ फ़िक्र गलत है। ऐसे मर्द अपनी बीवियों के नज़र में सूरमा यानी कामयाब या फ़ातिह इंसान बने रहना चाहते हैं। चुनाचा जब हालात उनके ख़िलाफ़ जा रहे हों तो सूरत हाल को बीवियों से छुपाते हैं। उनके नज़दीक बीवियों को उनके हालात से बखबर ना करने की वजह यह होती है कि इस तरह वो बीवियों की नज़रों से गिर जाएंगे और उनके सामने इकरार करते हुए शर्माते हैं कि वो हालात से हार गए हैं, मगर इस नुक्ते को फरमोश कर देते हैं कि एक बीवी हर हाल में ज़िंदगी की शरीक और शौहर की रफ़ीक होती है। इस बयान पर यह एतराज़ भी किया जा सकता है कि ऐसी बीवियां भी होती हैं जो शौहरों के दुख दर्द में शिरकत की अहल ही नहीं होती। ये एतराज़ गलत नहीं है। इस ज़माने में औरतों की दो किस्में होती हैं, एक वो जो शौहरों के दुख दर्द को तवज्जो और हमदर्दी से सुनने की अहलियत रखती हैं, दूसरी वो जिनमें यह सलाहियत या अहलियत ही नहीं होती। तो इस मुशाहदे में मंदरजा झैल बातें आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। अब मर्द तो ये चाहते हैं कि उनकी बीवियां उनकी बातें तवज्जो से सुने, मगर वो उनसे मशवरा लेने के कायल नहीं होते। अब मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करता हूँ। अगर आपने कोई काबिल तारीफ़ काम किया हो और वो दफ्तर में उसका ज़िक्र करने से इसके सिवा कुछ हासिल ना होगा कि आपके हासद ही पैदा होंगे। इस तरह अगर आप दफ्तर के लोगों से अपनी मुश्किलात और परेशानी का हाल बयान करने लगेंगे तो अव्वल वो आपकी इस किस्म की बातें सुनेंगे ही नहीं। आजकल हर शख्स की अपनी ही परेशानियां कुछ कम नहीं हैं, लेकिन अगर सुनेंगे तो इस नीयत से कि आपकी मुश्किलात से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसलिए अब ले दे के अपना ही घर ऐसी जगह रह गया है जहाँ इस किस्म की बातें कही जा सकती हैं। अब वो बीवियाँ जो अपने शौहरों की इस किस्म की बातें कान धार कर नहीं सुनती, वो उनका हाल कुछ इस किस्म का होता है। अब शौहर दफ्तर से घर पहुंचा, उसका सांस चढ़ा हुआ है। जाहिर है कि वो तेज़ चाल से चलकर घर पहुंचा है, गोया कि वो कोई अहम बात अपनी बीवी को बताना चाहता है। अब वो कहना शुरू करता है, भाई आज का दिन तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। मगर बीवी उसके आगाज़ गुफ्तगू की जानब मुतवज्जो ही नहीं होती। फिर भी मियाँ अपनी कहानी कहता रहता है, मुझे डायरेक्टरों की मीटिंग में तलब किया गया और कहा गया कि वो रिपोर्ट पेश करो जो तुमने इलाकाई हालात के बारे में तैयार की है। और बीवी शौहर की ज़बानी उसके कैरियर की ये अहम तरीन खबर भी तवज्जो के साथ नहीं सुन रही और कह देती है, अच्छा लो तुम ये रोज़ चखो। शौहर एक लम्हे के लिए साकत रह जाता है, मगर बीवी अपनी कही जा रही है। आज दुकानदार का मुंशी आया था और वो कह रहा था कि छत की मरम्मत करनी है, तुम इतवार के दिन घर पे रहना, वो उस दिन मज़दूर वगैरह को लेकर आएगा। अब शौहर फिर अपनी कहानी शुरू करता है, डॉक्टर ने मुझसे कहा तुम इस मामले में अपनी राय भी ज़ाहिर करो।
मगर बीवी रोस्ट शौहर के आगे रखने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है। उसे एहसास ही नहीं होता कि उसके शौहर ने कितनी तवज्जो तलब बात कही है। शौहर अपना फ़िक्रा पूरा करता है। मैं पहले तो किसी कदर घबराया, मगर फिर मैंने हिम्मत करके बोलना शुरू कर दिया, और अब जब मैंने रिपोर्ट के ज़रूरी निकात की वज़ाहत शुरू की तो सब आश्चर्य कर उठे। और एक डॉक्टर ऐसा है जो मेरा मुखालफ है, मगर इस मरतबा वो भी। अब बीवी उसकी बात सुनती नहीं है, फिर काटती है, हाँ तो तुम जो अच्छा काम करते हो। बीवी शौहर की इस दाद पर किसी कदर खुशी महसूस करता है, मगर अगले लम्हे उस पर खुशी पर मिट्टी डाल देती है और कहती है, अच्छा ये सुनो, नन्हे के मास्टर ने आज फिर बेटे को सज़ा दी है। तुम कल दफ्तर जाने से पहले स्कूल जाकर उसे समझाओ कि इस तरह की पिटाई करने से बच्चा पढ़ाई से बेजार हो जाएगा। अब शौहर को यकीन हो जाता है कि उस औरत ने उसकी किस्म किस्म की बातें नहीं सुनी जैसे कि वो करनी चाहता है। चुनाचा वो गुफ्तगू तर्क करके रोश की जानब मुतवज्जे हो जाता है। अब आइए इस वाक़े पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहला दरियाफ्त तलब सवाल यह है कि आया बीवी शौहर को अपने मसाइल से आगाह करके गलती कर रही थी? इसका जवाब ये है कि वो गलती हरगज़ नहीं थी। अब इसकी वजह क्या है? वो ये है कि उससे भी तो ऐसे शौहर की ज़रूरत है जो उसके मसाइल तवज्जो और हमदर्दी से सुने। अब सवाल ये है कि अगर उसका रवैया गलत नहीं है तो इस रवैये ने शौहर को अपील क्यों नहीं दी? इसकी आखिर वजह क्यों थी? इसका जवाब नफ्सियात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। बीवी ने अपने शौहर को ऐसी बातें सुनाने के लिए जो वक्त का इंतखाब किया है वो गलत है। उसे चाहिए था कि वो पहले सब बातें तवज्जो हमदर्दी से सुनती जो शौहर उससे कहना चाहता है। जब शौहर इस तरह अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता तो फिर वो उसे अपने मसाइल से आगाह करती। इस वक्त उसका शौहर उसकी एक एक बात तवज्जो से सुनता, मगर वो उसकी गुफ्तगू में हौसला अफजा हिस्सा भी लेता, मगर बीवी के सवालात के ऐसे जवाबात भी देता जो उसके लिए तसल्ली बख्श साबित होते। वो औरत जो अपने शौहर की बातें तवज्जो से सुनती हैं वही उसे सही और मुनासिब मशवरे भी दे सकती हैं। आप मशवरे के मामले में अपने मुखातब की पहचान का हर वक्त ख्याल रखिए। आपका मुखातब आपका भाई हो, फर्जंद हो या कोई बुज़ुर्ग हो,